So students, how are you? Fine. So today we want to discuss conceptual problems regarding rotational motion. Now the problem is this, you can say conceptual or the numerical problem, which is based on the concept. क्या है problem? A small object, of uniform density rolls up a curved surface. Rolls up a curved surface with initial velocity v. With initial velocity v. It reaches up to maximum height. It reaches up to maximum height, that is 3v square upon 4g. The maximum height is 3v square upon 4g with respect to initial position. With respect to initial position, name the given object. Name the given object. So very interesting problem. It's that a small object of uniform density rolls up a curved surface with initial velocity v. So that means if you are considering surface, so this is the bottom of the surface and here the initial speed is v. Our body is rolling on the surface and this body goes up to a maximum height of h, and it is given that this height h is with respect to initial position. So if this is the initial position of the body, then the final position is this, and height traversed is h, vertical distance between initial and final position. So now when we are considering that the body is rolling here, that means this body will possess both kinetic energy of translation as well as kinetic energy of rotation. As it will move up the surface, it will roll up the surface, then its kinetic energy will go into changing into potential energy. So what would happen? Up to what point the body will move where whole of its kinetic energy will be converted into potential energy. So we will use the formula total kinetic energy at initial position is equal to total potential energy at the final position. So that's all. Okay, bottom pe it has got only and only kinetic. At the top where it will stop, it has got only potential. Now total kinetic energy is translational half mv square plus rotational half I omega square. Because when you are considering rolling of a body, it means it will possess both motions simultaneously. In this case, body will rotate about its center of mass and center of mass of body will move in the forward direction. So this is equal to mgh. So now you do one thing, half of mv square plus half of I. Now you can write omega is equal to v by r because you are considering the body, so that body is having the shape. तो r क्या है? Radius है. तो omega is v by r. तो omega square will be v square by r square. mg, and what is value of h given? It's 3v square upon 4g.
So now you see here, okay, v square will be cancelled throughout. So what are you getting? You are getting m by 2, ठीक है, v square cancel हो गया, plus 1 by 2 I upon r square is equal to m g into 3 by, now mg into 3 by 4g है, sorry, so now you here can do one thing, that this g will be cancelled with this g, आप यहीं पर इसको cancel out कर दीजिए, तो you will get it as 3 by 4 m. मैंने इसमें क्या किया है, I have simply cut down v square by taking v square common on both sides, उसे cancel कर दिया, तो यहाँ m by 2 आ गया, यहाँ पर I upon 2r square आ गया, इधर 3 by 4 m आ गया, ठीक हो गया. And now you do one thing, you will divide by m. So if you will divide by m, then what will you get? You will get 1 by 2 plus half of I upon mr square is equal to 3 by 4, which means that half of I by mr square is equal to 3 by 4 minus 1 by 2. So that will become 1 by 4. So now what is I? I will be 2 mr square by 4. That means it is half of mr square. So you are getting the expression for moment of inertia of the object as half mr square when it is rotating about an axis perpendicular to its plane. So that means here you can say the object will be a disk. So this is the reason that how you can do this problem. So it's very interesting. आपको याद है मैंने लास्ट टाइम जो आर्टिकल करवाया था उसमें हमने बॉडी को रोल करवाया था टॉप से और हमने ये कहा था व्हाट विल बी द वेलोसिटी व्हेन इट विल रीच एट द बॉटम. अब इस प्रॉब्लम में मैंने उल्टा दिया कि बॉडी इनिशियली हैज गॉट वेलोसिटी v and it rolls down up the curved surface and then it can move up to a particular height. तो अब अगर आपको मैं बॉडी की टाइप बता देती तो मैं उसमें ये भी पूछ सकती थी कि अप टू व्हाट हाइट दिस बॉडी विल मूव, तो इस तरीके से प्रॉब्लम हो सकती थी. नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज a signboard made of metal in the shape of triangle is to be hanged with a metallic wire. Is to be hanged with a metallic wire. Find the distance from left hand of the board. Find the distance from left hand of the board, where wire is to be attached, to hang the board, अब सबसे पहले it is given that this is the board in the form of a triangle, so that means this board is like this is its h height and this is l. So अब ध्यान से आप इस प्रॉब्लम को देखिए. प्रॉब्लम ये है कि साइन बोर्ड इज मेड ऑफ मेटल एंड इट इज इन द शेप ऑफ द ट्राइंगल. अब इस क्या करना है, we want to hang this signboard with the help of a metallic wire. तो अब हमें ये बताना है कि किस पोजीशन पे
इसको हैंग किया जाए, मीन्स लेट अस से फ्रॉम द लेफ्ट साइड, दैट मीन्स हियर, कि भी मान लो मैं कहती हूँ कि यहाँ से इसको हैंग करो, सो व्हाट विल बी दिस एक्स एंड व्हाट विल बी दिस वाई, कहाँ से हैंग करें। अब एक्चुअली एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि किसी भी चीज़ को, अब मान लीजिए कि यू टॉक अबाउट दिस ओनली, अब अगर मैंने इसको हैंग करना है एंड आई वॉन्ट कि इट शुड हैंग प्रॉपरली इन दिस वेरी पोजिशन ओनली, कि ये इसी तरीके से हैंग होके रहे, सो कब पॉसिबल होगा ये, when we will suspend it, when we will hang it from its center of mass. अदरवाइज अगर आप इसको सेंटर ऑफ मास से हैंग नहीं करोगे तो इट विल टिल्ट टू दिस साइड और इट विल टिल्ट टू दैट साइड, because you know that when no external torque is acting, then center of mass remains constant. ठीक है ना, जब आपने सेंटर ऑफ मास पे नहीं किया तो फिर ऑब्वियसली उस केस में एक्सटर्नल टॉर्क आ जाएगी, जिसकी वजह से बॉडी रोटेट हो जाएगी। सो दैट मीन्स इन ऑर्डर टू सी दैट, मान लीजिए मैं कहती हूँ कि यहाँ से इसको हैंग करना है, तो आई वॉन्ट टू कैलकुलेट दैट व्हाट शुड बी दिस एक्स पोजीशन जो हमारे पास यहाँ पर आए, यही करना हुआ ना। सो दैट मीन्स प्रॉब्लम में हमने क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, कुछ भी नहीं, उसने ये पूछा ना कहाँ से हैंग करें, तो उसके लिए हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और किस तरीके से करते हैं, अब अगर आप x लेना चाहते हो, अब इसमें क्या है, इन दिस केस यू आर नॉट कंसिडरिंग डिस्क्रीट मासेस बट यू आर हैविंग कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, तो उस केस में क्या आता है बेटे फॉर्मूला, 1 अपॉन द टोटल मास ऑफ द बॉडी इंटीग्रेशन x dn, यही होता है ना कि भाई, है ना। ठीक है, अब ये फॉर्मूला भी हमें पता लग गया। अब इसमें कैपिटल हमने टोटल मास इसका ले लिया। अब क्वेश्चन है कि डीएम कैसे लेंगे। डीएम के लिए हम इसमें बेटे क्या करते हैं, मैं एक ये स्ट्रिप ले लेती हूँ, एक छोटी सी पतली सी मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिप ले ली, और मैं क्या कंसिडर कर रही हूँ कि जैसे ये एक स्ट्रिप है, मैंने इसकी थिकनेस ले ली, दिस थिकनेस इज dx, ठीक है, ये थिकनेस इसकी dx है और ये इसकी हाइट जो है वो y है। अब इसमें सबसे पहले तो हम लिखते हैं इसमें कि when we are saying that mass is uniformly distributed over the whole of this signboard, it means what will be mass per unit area। इस साइन बोर्ड में हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे कि व्हाट इज मास पर यूनिट एरिया, बिकॉज मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर होल ऑफ एरिया ऑफ दिस साइन बोर्ड। तो टोटल मास कैपिटल M डिवाइडेड बाय एरिया, एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल that will be half of L into H, because L is base and H is height in this case। तो ये आपके पास आ गया 2m upon LH। ठीक हो गया। Now we will consider an elementary strip, ठीक है, ऑफ एरिया। जो एलिमेंट्री स्ट्रिप लोगे नेचुरली इसमें से उसका भी कुछ एरिया होगा, तो मैंने क्या लिया है, एलिमेंट्री स्ट्रिप ऑफ हाइट y एंड थिकनेस ds, तो इसका एरिया बन गया y इंटू dx। तो नाउ मास ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप, मास ऑफ दिस एलिमेंट्री स्ट्रिप, दैट विल बी dm, और dm क्या होगा, mass per unit length 2m upon LH into mass of this, that is y into dx। तो ये क्या बन गया बेटा, dm। तो now here we can take that what will be position of this center of mass, 1 upon m integration x into dm। dm को हम क्या लिख रहे हैं, 2m upon LH y
dx। अब अगर ध्यान से देखें, अब इसमें 1/m और ये बेटा 2m/LH बाहर आ गया, क्योंकि m is the total mass of the sign board, L is its base and H is its height. These are the constants. इंटीग्रेशन से बाहर x y dx। अब m से m कैंसिल हो गया। अब देखिए, अब हमने ये देखना है हाउ y विल डिपेंड अपॉन x। y जो है बेटा वो x पे डिपेंड कर रही है। ये देखो, अगर आप इस x को बढ़ा दोगे तो y भी तो बढ़ जाएगी, है ना, इस तरीके से ऊपर को जा रही है। तो जैसे जैसे x इंक्रीज होगा y भी इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब वी शुड नो द रिलेशन हाउ y इज डिपेंडिंग अपॉन x। उसके लिए हम अगर बेटा इस पॉइंट को O ले ले तो ये आपके पास दो एक तरह के सिमिलर ट्राइंगल नहीं आ गए कि आ गया कि आ गया। तो व्हाट यू विल गेट h by l is equal to y by x। ये वाला ट्राइंगल लिया, इस वाले ट्राइंगल को ऐसे करो ना, इसको लिख लो OAB, इसको CD लिख लो। तो OAB ट्राइंगल में आपके पास बन गया, आपने क्या लिया बेटा इसमें, ट्राइंगल OAB and triangle OCD. These two triangles are similar, so ratio of their corresponding sides must be same. So h by l is equal to y by x. So that means what is y? Y will be equal to h by l into x. तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, it will become 2 by LH integration x h by l x dx। ठीक हो गया। एंड नाउ इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम वेयर टू वेयर। अब आप x कहाँ से ले रहे हो, इस एंड से कहाँ तक जाना है, अप टू d, सो इट विल बी फ्रॉम 0 to l। अब इसमें ये आप जब बाहर निकाल दोगे h से h कैंसिल हो गया, तो इट विल बी 2 by l स्क्वायर। अंदर क्या है, x स्क्वायर dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to l। सो इट इज 2 by l स्क्वायर, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन आ गई x क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 to l, तो इट विल बी 2 by 3 l क्यूब बाई l स्क्वायर। So that means it is 2 by 3l. So if this end is taken 0, तो at the 2 by 3l यहाँ पर ये point आ गया from where this signboard must be suspended so that it can suspend vertically सही ढंग से। So देखिए, अब इसमें कॉन्सेप्ट की बात है। पहला कॉन्सेप्ट तो इसमें क्या है कि मैंने आपको ये नहीं कहा था कि फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने तो ये पूछा कि ये बताइए कि स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ दिस बेस ऑफ द ट्राइंगल वेयर वायर शुड बी अटैच्ड टू सस्पेंडेड। ये हमने अपना कॉन्सेप्ट लगाना है कि भाई वायर कहाँ से सस्पेंड करनी है, फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। इसलिए हमारे माइंड में एकदम आ गया कि ओके, इन दिस प्रॉब्लम वी हैव टू कैलकुलेट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि इस साइन बोर्ड में देयर इज कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ओवर होल ऑफ इट्स एरिया। तो दैट मीन्स द फॉर्मूला यूज्ड विल बी दिस। अगला पॉइंट हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट आ गया कि dm क्या होगा, dm विल बी द मास ऑफ एलिमेंट्री पार्ट। तो उस एलिमेंट्री पार्ट को देखने के लिए सबसे पहले हम देख रहे हैं कि साइन बोर्ड इज इन अ प्लेन। प्लेन का क्या है, एरिया। एरिया कितना है, ट्राइंगल का हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, दैट इज हाफ ऑफ l इनटू h। तो मास पर यूनिट एरिया आपके पास आ गया। फिर हम उस साइन बोर्ड में से एक स्ट्रिप ले लेंगे जिसकी हाइट y ली, थिकनेस dx ली, ये छोटा सा पोर्शन ले लिया। अब उस, क्योंकि देखो अगर देखा जाए तो ये सारी की सारी इस तरह की स्ट्रिप्स की तो बनी हुई आएगी, और इन स्ट्रिप्स में आप थिकनेस तो सेम रख सकते हो, यहाँ तो dx तो सेम रख सकते हो, क्या वेरी करेगा, y। तो इसलिए मैंने एक एलिमेंट्री स्ट्रिप जो ली उसका एरिया आ गया y इंटू dx। तो मेरे पास मास ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप आ गया, तो मैंने उसको पुट किया तो ये रिलेशन बन गया। अब इसमें से कांस्टेंट बाहर निकाल लिए। अब अंदर आ गया कि वी हैव टू इंटेग्रेट एक्स वाई। अब y को बाहर नहीं निकाल देना,
ये देखो जैसे जैसे x वेरी हो रहा है तो y उसके अकॉर्डिंगली वेरी हो रहा है. दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट रिलेशन बिटवीन x एंड y. उसके लिए मैंने बेसिक क्या कर लिया कि दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल दे आर द सिमिलर. ये कॉमन एंगल है, ये राइट एंगल है, तो तीसरा भी बराबर हो गया. सो दैट मीन्स रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इज सेम. तो y अपॉन x, h अपॉन l. तो वहाँ से हमारे पास y इन टर्म्स ऑफ x आ गया. उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी. अब इंटीग्रेशन में लिमिट चाहिए. अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? 0. ओरिजिन जिसको आपने ले लिया, यहाँ क्या है? l. सो इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम 0 टू l. तो इस तरीके से हमारी थॉट प्रोसेस चलनी चाहिए. बेटा यही है इन प्रॉब्लम्स में, नथिंग एल्स. कि आपने जो कुछ अंडरस्टैंड किया है आप प्रॉब्लम को समझिए. दिस इज नॉट मैथमेटिक्स. इस प्रॉब्लम में आप फिजिक्स कॉन्सेप्ट को जानिए और जानने के बाद आप उसको अप्लाई करिए. मैथमेटिक्स यू हैव टू यूज ओनली टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, राइट. सो बड़ा अच्छा लगा. तो अब आप इस तरीके के, मैंने साथ साथ में भी आपको काफ़ी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स बताए हैं. मैंने आपको एक ये भी कहा था, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन हार्ड बॉइल्ड एग एंड रॉ एग. मान लो एक येलो कलर का, आप कहोगे कि जी जब बॉईल कर लेते हैं कलर चेंज होता है. नो, दोनों का कलर येलो है. एक बॉयल है अच्छी तरह से और एक क्या है? रॉ है. इनको डिस्टिंग्विश करना है. कैसे करोगे? कैसे करोगे? यू विल अलाउ स्पिनिंग ऑफ बोथ द एग्स साइमल्टेनियसली ऑन अ टेबल. एक टेबल ले लिया. अब उस टेबल में अगर रिटार्डिंग टॉर्क है, कोई फ्रिक्शन है, उसकी वजह से सेम होगा. और आप साइमल्टेनियसली दोनों को रोटेट करवा रही हो एक जितनी फोर्स अप्लाई करके. एंड उसके बाद आप क्या देखोगे कि द एग विच विल come to rest first, that will be raw egg. रॉ एग जल्दी आ जाएगा, स्पिनिंग बंद हो जाएगी उसकी. क्यों? क्योंकि बेटा यू नो कि आपने क्या किया, आपने उसको स्पिन दी. दैट मीन यू आर अप्लाइंग टॉर्क. तो इक्वल टॉर्क्स आर अप्लाइड टू बोथ द एग्स. नाउ व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज I into alpha. Now you know moment of inertia of the raw egg will be more than that of the hard boiled egg. क्यों? क्योंकि जब एग बॉयल हो गया, डेंस हो गया, मटेरियल इज टूवर्ड्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन. लेकिन जो लिक्विड मटेरियल है वो अवे है, तो जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो गई उसमें अल्फा की वैल्यू कम आएगी, तो नेचुरली वो जल्दी रुकेगा. तो इस तरह के बहुत से बेटे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स बनती हैं. काफ़ी मैंने आपको साथ साथ में डिस्कस की हैं. आप अब खुद और प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स. सो अदरवाइज like the video and tell to your friends also. Thank you.